محاصرے کا 16واں-17واں روز تھا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں کر رہا تھا کہ قلعے کو توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی تڑپ کر بولا، اسے فوراً اندر بھیج دو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ قاصد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاصد نہیں، کسی دستے کا کمانڈر ہے۔ سلطان ایوبی نے بے تابی سے پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جس رنگ میں سالار اعظم دیکھیں، خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے ابھی شکست نہیں کھائی اور پسپا نہیں ہوئے۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست اور پسپائی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں؟ کمانڈر نے کہا، صاف نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپائی کے بغیر چارہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے پورا پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا۔ اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فرعونوں کے زمانے کے کھنڈروں میں صلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈرامہ پکڑا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مشیروں اور سالاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کریں، مگر تقی الدین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس لیے پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ صلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا، لیکن یہ کمانڈر پیغام لایا تھا کہ سوڈان میں شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ عام قاصد کی بجائے تقی الدین نے ایک کمانڈر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کر دیا ہے۔ کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ تقی الدین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی سلطان ایوبی کا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کی جنگی فہم و فراست میں فرق تھا۔ تقی الدین نے جو فیصلہ کیا نیک نیتی اور اسلامی جذبے کے تحت کیا، مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا کہ دشمن پر سوچے سمجھے بغیر ٹوٹ پڑنے کو جہاد یا جنگ نہیں کہتے۔ اس نے سوڈان میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں پر بھی پوری طرح غور نہ کیا، ان کی صرف اس اطلاع پر توجہ مرکوز رکھی کہ سوڈانیوں کو صلیبی کمانڈرز ٹریننگ دے رہے ہیں اور وہاں حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ تقی الدین نے دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس قسم کی انتہائی اہم معلومات حاصل نہ کی کہ سوڈانیوں کی جنگی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی طاقت لڑائیں گے اور کتنی ریزرو میں رکھیں گے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، سوار کتنے اور پیادے کتنے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ میدان جنگ کس قسم کا اور مصر سے کتنی دور ہوگا، اور رسد کے انتظامات کیا ہوں گے۔ دو خرابیاں تو ابتدا ہی میں سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ سوڈانیوں نے بلکہ صلیبی کمانڈروں نے تقی الدین کو سرحد پار نہیں روکا، اسے بہت دور تک سوڈان کے اس علاقے تک جانے کے لیے رستہ دے دیا جو بڑا ہی ظالم صحرا تھا اور جہاں پانی نہیں تھا۔ دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ تقی الدین کی فوج دراصل سلطان ایوبی کی چالوں پر لڑنے والی فوج تھی جو انتہائی کم تعداد میں دشمن کے بڑے بڑے دستوں کو تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ اس فوج کو صرف سلطان ایوبی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی آمنے سامنے کی ٹکر سے ہمیشہ گریز کرتا، وہ متحرک قسم کی جنگ لڑتا تھا۔ تقی الدین لشکر کشی کا قائل تھا، اس فوج میں تجربہ کار اور جانباز چھاپا مار دستے بھی تھے، لیکن ان کا صحیح استعمال سلطان ایوبی جانتا تھا۔ سوڈان میں جا کر یوں ہوا کہ فوج ایک لشکر کی صورت میں بندھی رہی اور دشمن اپنی چال چل گیا۔ دشمن تقی الدین کو اپنی پسند کے علاقے میں لے گیا اور اس کی فوج پر سلطان ایوبی کے انداز کے شبخون مارنے شروع کر دیے۔ تقی الدین کے جانوروں اور جوانوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی۔ چھاپا مار دستوں کے کمانڈروں نے اسے کہا کہ وہ انہیں صحرا میں آزاد چھوڑ دے، مگر تقی الدین نے اس خدشے کے پیش نظر انہیں کوئی کارروائی نہ کرنے دی کہ جمعیت اور مرکزیت ختم ہو جائے گی۔ جب رسد کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ تکلیف دہ احساس ہوا کہ وہ اتنی دور چلے آئے ہیں جہاں تک رسد کو پہنچتے کئی دن لگیں گے اور رسد کا راستہ محفوظ بھی نہیں۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ رسد کے پہلے ہی قافلے کی اطلاع ملی کہ دشمن نے اسے تباہ نہیں کیا بلکہ تمام تر رسد اور جانور اڑا لے گیا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع پر چھاپا مار دستوں کے ایک سینئر کمانڈر اور تقی الدین میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمانڈر نے کہا کہ وہ لڑنے آئے ہیں اور لڑیں گے،
लेकिन इस तरह नहीं कि दुश्मन शबखून मार रहा है, रसद लूट कर ले गया है और हम मरकजियत के पाबंद बैठे रहें। तकीउद्दीन ने हुक्म के लहजे में सख्त कलामी की तो कमांडर ने कहा, आप तकीउद्दीन हैं, सलाहुद्दीन नहीं। हम उस अज़्म और उस तरीके से लड़ेंगे जो हमें सलाहुद्दीन ने सिखाया है। हम छापामार हैं, हम दुश्मन के पेट के अंदर जाकर उसका पेट चाक किया करते हैं। आपका ये लश्कर भूखा मर रहा है और रसद दुश्मन ले गया है। हम दुश्मन की रसद लूट कर अपनी फौज को खिलाने के आदी हैं। वाक़े निगार लिखते हैं कि तकीउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि छापामारों का ये कमांडर किस जज्बे से पागल हुआ जा रहा है। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं ज़ाते बारी ताला के अज़ाब से डरता हूँ। मैं उन जांबाजों को जो फलस्तीन में लड़ते हुए आए हैं नाहक मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। कमांडर ने कहा, फिर आपको हमला भी नहीं करना चाहिए था। हम में कौन है जो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार नहीं। हम मौत के मुंह में आ चुके हैं और यही मुसलमान की शान है कि वो मौत के मुंह में जाकर अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करता है। आप जज्बात से निकलें, हम दुश्मन के जाल में आ चुके हैं। तकीउद्दीन कोई ऐसा अनाड़ी भी नहीं था। उसे सुल्तान अय्यूबी के ये अल्फाज याद थे कि अपने आप को बादशाह समझकर किसी को हुक्म न देना और मैदान जंग में जाकर अपनी गलतियों से चश्मपोशी न करना। उसने उस कमांडर की सख्त कलामी को गुस्ताखी न समझा और उसी वक्त तमाम आला कमांडरों को बुलाकर जंग की सूरत हाल और आइंदा इकदाम के मुताल्लिक बातचीत की। फैसला हुआ कि छापामारों की जवाबी कार्रवाइयां करने के लिए फैला दिया जाए। रसद के रास्ते को भी छापामार अपनी हिफाजत में ले लें। फौज के मुताल्लिक ये फैसला हुआ कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम करके दुश्मन पर 3 अतराफ से हमला किया जाए। तकीउद्दीन ने अपने पास जो महफूजा रखा वो खासा कम था। इस तकसीम और तरतीब से ये फायदा हुआ कि फौज उस इलाके से निकल गई जहां पानी नहीं था, रेत और टीलों का समंदर था, मगर फौज बिखर गई। दुश्मन ने तीनों हिस्सों पर हमले करके उन्हें और ज्यादा बखेर दिया। जानी नुकसान बहुत होने लगा। निहायत तेजी से कमांडरों ने अपने अपने दस्तों को अलग अलग करके उसी नौयत की जंग शुरू कर दी जो उन्हें सुल्तान अय्यूबी ने सिखाई थी, मगर साफ पता चल रहा था कि वो जीत नहीं सकेंगे। उन्होंने जज्बा कायम रखा। रसद और कुमक का सवाल ही खत्म हो गया था। वो शबखून मारते और खाने पीने के लिए कुछ हासिल कर लेते। छापामार निहायत जांबाजी से शबखून मारते, दुश्मन का नुकसान करते और जो हाथ लगता वो मुख्तलिफ दस्तों तक पहुंचा देते। मरकजी कमान खत्म हो चुकी थी। तकीउद्दीन अपने अमले के साथ भागता दौड़ता रहता था। जज्बे की हद तक वो मुतमईन था। उसे कहीं से भी ऐसी इत्तला न मिली कि किसी दस्ते या जमात ने हथियार डाल दिया। जंग छोटे छोटे मार्कों और झड़पों में तकसीम होते होते आधे सूडान तक फैल गई। मुसलमान कमांडरों ने फर्दन फर्दन ये फैसला कर लिया कि वो छापामार किस्म की जंग लड़ते रहेंगे, सूडान से निकलेंगे नहीं। दुश्मन का नुकसान भी हो रहा था। एक वक्त आ गया जब दुश्मन परेशान हो गया कि मुसलमानों को सूडान से किस तरह निकाला जाए। मुसलमान फौजी सहराओं, बयाबानों और देहाती आबादियों में फैल गए थे। अब मरकज को ये भी पता नहीं चलता था कि जानी नुकसान कितना हो चुका है और कितनी नफरी बाकी है। ये अंदाजा जरूर हो रहा था कि दुश्मन भी मुसीबत में मुब्तला है और अब वो मिस्र पर हमला नहीं कर सकेगा। मगर इस तरीके जंग से कोई ठोस फायदा हासिल नहीं किया जा सकता था, कोई इलाका फतह नहीं किया जा सकता था। फौज मरती जा रही थी। इन हालात में तकीउद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी को अपने एक कमांडर की ज़बानी पैगाम भेजा। उसने कहा कि सूडान की मुहिम सिर्फ इसी सूरत में कामयाब हो सकती है कि उसे कुमक मिल जाए। उसकी तमाम फौज छापामार पार्टियों में बट गई थी। इन पार्टियों की कार्रवाइयों से फायदा उठाने के लिए मजीद फौज की जरूरत थी। तकीउद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी से पूछा था कि कुमक न मिल सके तो क्या वो सूडान में बिखरी हुई फौज को यकजा करके मिस्र वापस आ जाए। मिस्र में जो फौज थी वो मिस्र के अंदरूनी हालात और सरहदों की हिफाजत के लिए भी नाकाफी थी। उसे महाज पर ले जाने का सवाल ही नहीं था। सुल्तान अय्यूबी पसपाई का कायल नहीं था। उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो अपने भाई को पसपाई का हुक्म दे या नहीं, लेकिन हकायक उसे मजबूर कर रहे थे। वो कुमक नहीं दे सकता था। वो खुद कुमक की जरूरत महसूस कर रहा था। वो गहरी सोच में खो गया। तकीउद्दीन के उस कासिद ने सुल्तान अय्यूबी को जंग की सूरत हाल तो बता दी, लेकिन सलीबियों और सूडानियों ने वहां एक और महाज खोल दिया था, वो न बताया। गालिबन उस कमांडर को मालूम न होगा। ऐसे इंकिशाफात बहुत बाद में हुए थे। तकीउद्दीन की फौज 10-10, 12-12 की टोलियों में बिखर कर लड़ रही थी। बाज इलाकों में खाना बदोशों के झोंपड़े और खेमे भी थे। बाज जगहें हरी भरी और सरसब्ज भी थीं और पेशतर इलाके बंजर, वीरान और रेगिस्तान थे। एक शाम 3 छापा मार मुजाहिदीन वापस अपने एक सीनियर कमांडर के पास आए। उनमें 2 जख्मी थे। उन्होंने सुनाया कि उनकी पार्टी में 21 अफराद और 22वां पार्टी कमांडर था। दिन के वक्त ये पार्टी एक जगह छुपी हुई थी।
पार्टी कमांडर इधर उधर इस तरह टहल रहा था जैसे पहरा दे रहा हो या किसी की राह देख रहा हो। एक सूडानी शुतर सवार गुजरा और पार्टी कमांडर को देख कर रुक गया। कमांडर उसके पास गया और मालूम नहीं उसके साथ क्या बातें की। शुतर सवार चला गया तो पार्टी कमांडर ने अपने 21 जांबाजों को ये खुशखबरी सुनाई कि 2 मील दूर एक गांव है जहां मुसलमान रहते हैं। उस शुतर सवार ने पार्टी को अपने गांव में मदऊ किया। रात को गांव वाले पार्टी को अपना मेहमान रखेंगे और दुश्मन की एक जमीयत की जगह भी बताएंगे। तमाम जांबाज बहुत खुश हुए। खाना दाना मिलने के अलावा दुश्मन पर हमले का मौका भी मिल रहा था। सूरज गुरूब होते ही ये सब उस गांव की तरफ चल दिए। वहां जाके देखा कि सिर्फ 3 झोंपड़े थे, इधर उधर दरख्त थे और पानी भी था। सिपाहियों को झोंपड़ों के बाहर डेरे डालने को कहा गया। पार्टी कमांडर एक झोंपड़े में चला गया। बाहर मशलें जला दी गईं और सबको खाना दिया गया। पार्टी कमांडर ने कहा कि सब सो जाओ, हमले के वक्त उन्हें जगा लिया जाएगा। थके हुए सिपाही सो गए। ये 3 जो वापस आए उनमें से एक सो न सका। उसकी आंख खुल गई। उसे एक झोंपड़े में औरतों के कहकहों की आवाजें सुनाई दी। उसने झांक कर देखा। झोंपड़े में पार्टी कमांडर 2 निहायत हसीन लड़कियों के साथ हंस खिल रहा था और शराब चल रही थी। लड़कियां सहराई लिबास में थीं लेकिन सहराई लगती नहीं थीं। उस सिपाही को बार बार कुछ दबी दबी आवाजें सुनाई दी। चांदनी में उसने देखा कि बहुत से आदमी आ रहे थे जिनके हाथों में बर्छियां और तलवारें थीं। सिपाही झोंपड़े की ओट में हो गया और देखता रहा कि ये कौन लोग हैं। झोंपड़े में कोई दाखिल हुआ। उसकी आवाज सुनाई दी, क्यों भाई काम कर दें? पार्टी कमांडर ने कहा, तुम आ गए, सब सोए हुए हैं, खत्म कर दो। और लड़कियों के कहे सुनाई दिए। वो आदमी जो आ रहे थे सोई हुई पार्टियों पर टूट पड़े। कुछ तो सोते में खत्म हो गए और जो जाग उठे उन्होंने मुकाबला किया। ये सिपाही छुपा हुआ देखता रहा। उसे अपने 2 साथी भागते नजर आए। मौका देखकर ये सिपाही भी भाग उठा और अपने 2 साथियों से जा मिला। वो दोनों जख्मी थे। किसी ने उनका ताकुब न किया। ये मालूम ना हो सका कि पार्टी कमांडर शुतर सवार को दिए हुए लालच में आ गया था या वो पहले ही से दुश्मन का एजेंट था और अपने आदमियों को मरवाने का मौका देख रहा था। बहरहाल ये इंकिशाफ हुआ कि दुश्मन ने बिखरे हुए मुसलमान दस्तों को खत्म करने या अपने हाथ में करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दुश्मन इंसानी फितरत की कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा था। इन हालात में लड़ने वाले सिपाही को पेट और जिन्स की भूख बहुत परेशान किया करती है। दुश्मन मुजाहिदीन को ढूंढ ढूंढ कर हमले अलग कर रहा था और नफसियाती हथियार भी इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे चंद और वाकयात हुए। मुजाहिदीन को खबरदार किया गया कि किसी के झांसे में न आए। ऐसे बहुत से वाकयात में एक वाकया काबिल जिक्र है। छापामार दस्ते का एक कमांडर अताउल हाशमी एक जगह बैठा हुआ था। उसका दस्ता 3-4 पार्टियों में बिखरा हुआ था। ये मिस्र से आने वाली रसद का रास्ता था। अताउल हाशमी ने अपने सिर्फ एक दस्ते से, जिसकी नफरी 100 से कम थी, रसद के तमाम तर रास्ते को महफूज कर दिया था। रसद पर छापा मारने वाले दुश्मन का उसने बहुत नुकसान किया। उसके जांबाज अचानक झपट पड़े। सूडानियों ने उन्हें खत्म करने के बहुत जतन किए लेकिन 5-6 जांबाजों को शहीद करने के सिवा कोई कामयाबी हासिल न कर सके। अताउल हाशिम टीलों में ढकी हुई एक जगह बैठ गया। उसके साथ 6-7 जांबाज थे। ये उसने हेडक्वार्टर बना रखा था। उसे सहराई बदोशों के लिबास में 2 लड़कियां एक अधेड़ उम्र आदमी के साथ नजर आईं। अताउल हाशिम को देखकर तीनों उसके पास आ गए। लड़कियां सूडानी मालूम होती थीं, लेकिन उन्होंने जो लिबास पहन रखा था वो बहरूप लगता था। उनके चेहरों पर गर्द थी, चेहरे उदास थे और थकन भी मालूम होती थी। लड़कियां अधेड़ उम्र आदमी के पीछे हो गईं। ये झिझक और शर्म का इजहार था। उस आदमी ने कुछ मिस्री और कुछ सूडानी जबान में कहा कि वो मुसलमान हैं और ये दोनों उसकी बेटियां हैं। वो भूख से मर रहे हैं। उसने खाने के लिए कुछ मांगा। अताउल हाशिम सूडान की जबान जानता था। वो छापा मार था। सूडानी इलाके में कमांडो कार्रवाइयों की कामयाबी के लिए उसने सूडानी जबान सीखी थी। उसके पास खुराक की कमी नहीं थी। वो रसद का मुहाफिज था। 2-3 बार रसद गुजरी थी जिसमें से उसने अपने दस्ते के लिए बहुत सा राशन पानी अपने पास रख लिया था। उसने उन तीनों को खाना दिया और पूछा कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। उस आदमी ने किसी गांव का नाम लेकर कहा कि उनका गांव जंग की जद में आ गया है। कभी सूडानी आते थे, कभी मुसलमान। दोनों घर में खाने की कोई चीज नहीं छोड़ते थे। वो उन लड़कियों को फौजियों से छुपाता फिरता था। आखिर तंग आकर घर से निकल खड़ा हुआ। वो लड़कियों की इज्जत बचाना चाहता था। उसने बताया कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए इस कोशिश में है कि मिस्र चला जाए, मगर मुमकिन नजर नहीं आता। उसने अताउल हाशिम से कहा कि वो उन्हें मिस्र पहुंचा दे। उसके साथ ही उसने पूछा, तुम लोग इस जगह कब तक रहोगे? अताउल हाशिम ने कहा, जब तक रहूंगा तुम तीनों को अपने साथ रखूंगा। अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, आप इन दोनों लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें, मैं चला जाता हूँ। एक लड़की ने मासूम लहजे में कहा,
मैं ये देखकर हैरान हो रही हूँ कि आपकी जिंदगी कितनी दुश्वार है। फिर पूछा कि आपको अपना घर और बीवी बच्चे याद नहीं आते? अताउल हाशिम ने कहा, सब याद आते हैं, लेकिन मैं अपने फर्ज को नहीं भूल सकता। यूं मालूम होता था जैसे खाना खाकर और पानी पीकर उनके जिस्मों में नई जान और नई रूह पैदा हो गई हो। एक लड़की तो खामोश रही, दूसरी की जबान रवां हो गई। उसने जितनी भी बातें की उनमें अताउल हाशिम और उसके जांबाजों के लिए हमदर्दी थी। उसने ये भी कहा कि आप लोग वतन से इतनी दूर आकर अपनी जानें क्यों जाया करते हैं। अताउल हाशिम उठ खड़ा हुआ। उसने तीनों को उठाया और अपने आदमियों को बुलाया। उन्हें कहा कि इस सूडानी के पांव रस्सियों से बांध कर मेरे घोड़े के पीछे बांध दो। उन्होंने उसे गिराकर पांव बांध दिए और घोड़ा खोल लाए। रस्सी का एक सिरा घोड़े की सीन के साथ बांध दिया। अताउल हाशिम ने एक सिपाही से कहा कि घोड़े पर सवार हो जाए। वो सवार हो गया। अताउल हाशिम ने लड़कियों को इकट्ठा खड़ा करके 2 तीरंदाज बुलाए। उन्हें कहा कि मेरे इशारे पर लड़कियों की आंखों के दरमियान एक एक तीर चला दें और घुड़सवार घोड़े को एड़ लगा दे। घोड़े के पीछे सूडानी बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसे मालूम था कि घोड़ा दौड़ेगा तो उसका क्या हशर होगा। तीरंदाजों ने एक एक तीर कमान में डाल लिया और घुड़सवारों ने बागें थाम ली। अताउल हाशिम ने सूडानी लड़कियों और आदमी से कहा, मैं तुम तीनों को सिर्फ एक बार कहूंगा कि अपनी असलियत बता दो। जिस मकसद के लिए आए हो साफ बता दो, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। खामोशी तारी हो गई। लड़कियों ने घोड़े के पीछे बंधे हुए अपने साथी को देखा। वो भी खामोश था। उन्होंने आंखों ही आंखों में आपस में मशवरा कर लिया। सूडानी ने कहा कि वो अपना आप जाहिर कर देगा। अताउल हाशिम उसके पास बैठ गया और कहा कि वो सच बोले तो उसे खोला जाएगा। उस आदमी ने कहा, ओ पत्थर दिल इंसान, तेरे पास इतनी खूबसूरत लड़कियां लाया हूँ और तू इन्हें तीरों का निशाना बना रहा है। इन्हें अपने पास रख ले और अपने दस्ते को समेट कर यहाँ से चला जा। अगर ये कीमत थोड़ी है तो अपनी कीमत बता। सोने के सिक्के मांग, कुछ और मांग, शाम से पहले ला दूंगा। अताउल हाशिम उठा और सवार से कहा, घोड़ा दुल की चाल 15-20 कदम चलाओ। घोड़ा चल पड़ा। चंद कदम गया तो सूडानी बिलबिला उठा। अताउल हाशिम ने कहा, रुक जाओ। घोड़ा रुका तो अताउल हाशिम ने उसके पास जाकर कहा कि वो सीधी बातें करने पर आ जाए। वो मान गया। उसने बता दिया कि वो सूडानी जासूस है और सलीबियों ने उसे ट्रेनिंग दी है। लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि मिस्र की पैदाइश है और सलीबियों ने इन्हें तखरीबकारी के फन का माहिर बना रखा है। अताउल हाशिम ने उसके पांव खोल दिए और उसे अपने पास बिठाकर बातें पूछी। उसने बताया कि उसे ये काम दिया गया है कि सूडान में फैले हुए मुसलमान कमांडरों को लड़कियों या सोने चांदी का चकमा देकर उन्हें और उनके सिपाहियों को खत्म या कैद करा दिया जाए या उन्हें अपने हाथ में लिया जाए। उसने बताया कि अताउल हाशिम ने रसद का रास्ता ऐसी खूबी से महफूज कर रखा था कि सलीबी और सूडानी छापामारों का जानी नुकसान भी हुआ और रसद भी निकल गई। उसे ये मिशन देकर भेजा गया था कि अताउल हाशिम को इन लड़कियों से अंधा करके उसे कत्ल कर दे या उसे ऐसे फंदे में ले आए कि उसे कत्ल या कैद कर लिया जाए, और अगर वो ईमान का कच्चा साबित हुआ तो उसे अपने साथ मिला लिया जाए। ये सूडानी हैरान था कि अताउल हाशिम ने इतनी खूबसूरत लड़कियों को कबूल न किया। उसने जब अताउल हाशिम से पूछा कि उसने लड़कियों को और जर्रो जवाहिरात की पेशकश को क्यों ठुकरा दिया, तो अताउल हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं ईमान का कच्चा नहीं। अताउल हाशिम ने लड़कियों को भी अपने पास बुला लिया। ज्यादा बातें करने वाली ने पूछा कि उनके साथ क्या सलूक होगा। अताउल हाशिम ने उन्हें बताया कि वो कल सुबह अपने हेडक्वार्टर में सालार आला तकीउद्दीन के पास ले जाएगा या उन्हें भेज देगा। उसने सूडानी को लड़कियों समेत इस हिदायत के साथ अपने आदमियों के हवाले कर दिया कि इन्हें अलग अलग रखा जाएगा। उनकी तलाशी ली गई। तीनों के पास एक एक खंजर था। आदमी के पास एक पोटली थी जिसमें हशीश बंधी हुई थी। सूरज गुरूब होने वाला था जब उसके दस्ते की एक टोली वापस आ गई। उसने उस टोली को कुछ दूर दूर तक फैला दिया। उसने हर किसी को बता दिया कि ये तीनों जासूस और तखरीबकार हैं। हो सकता है इनके साथियों को मालूम हो कि ये यहाँ हैं और वो इन्हें छुड़ाने के लिए हमला करें। इन इंतजामात के बाद वो आराम के लिए लेट गया। वो जगह नशीबो फराज की थी। उसने लेटने से पहले देख लिया था कि उसके सिपाहियों ने लड़कियों और मर्द को किस तरह लिटाया है। वो खुद एक टीले के साथ लेटा जहाँ से वो अपने सिपाहियों को नहीं देख सकता था। उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद उसकी आंख खुल गई। उसके जहन में ये 2 लड़कियां आ गईं। वो इस सोच में खो गया कि ये कितनी हसीन और बज़ाहिर कैसी मासूम सी लड़कियां हैं और इनसे कितना गलीज और कितना खतरनाक काम कराया जा रहा है। अगर ये किसी मुसलमान घराने में पैदा होती तो किसी बाइज्जत घराने में दुल्हन बनकर जाती। उसे अपनी बीवी याद आ गई जो दुल्हन बनकर उसके घर आई थी तो इन्हीं की तरह जवान और दिलकश थी। अपनी बीवी की याद उसे रुमान अंगेज तस्वुरात में ले गई, उस वीरान सहरा में जहां वो मौत के साथ आंख मचोली खेल रहा था। इन तस्वुरों ने उस पर नशा सतारी कर दिया। मैदान जंग में सिपाही ऐसे ही तस्वुरों और बड़ी ही दिलकश यादों से दिल बहलाया करते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।